کہتے ہیں کہ اپنے دوسرے روم میں, جس روم میں آپ سونے جا رہے ہیں, آپ اس کو کسی اور روم میں اپنے فون کو چارج پہ لگائیں. لیکن سانس کیسے آئے گی؟ میں تو مر جاؤں گی. آپ میں سے تو سارے لوگ, کسی کو سانس ہی نہیں آئے گی. اچھا, جو یہ لوگ میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں نا, میری برادری سے, ہم پورے دن کچھ نہیں کھاتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کھانا, بھوکا رہنا ہے, بیٹر ہے, اور یہ اور وہ. پوری زندگی میں مانگیں گے ایک فروٹ جس کے بغیر میں نہیں رہوں گی, اور یہ میں کھاؤں گی, دیٹ از ہم. یہ 9 رولز پریکٹیکل ہیں, افورڈیبل ہیں, ایکچولی فری آف کاسٹ ہے آلموسٹ. السلام علیکم میری پیاری سی ہیلتھ کانشیس یوٹیوب فیملی, ویلکم ٹو آئی ایم عروسہ صدیقی. آج کی ویڈیو از اگین اے ویری امپورٹنٹ ویڈیو. آج کا دن از گوئنگ ٹو بی امیزنگ. وائی؟ بیکاز یو کلکڈ آن دس ویڈیو. آج کی ویڈیو ایک بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹ کے اوپر ہے. دیز آر اے سیٹ آف رولز جو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں, جو ہم یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ ہیلتھ از اے پرائیورٹی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو, یہ صرف ڈائلاگ نہیں رہے گا, یہ ایکچولی ٹرو ہو جائے گا. جب آپ کے اندر جان ہے, جب ہیلتھ ہے, جب آپ کے اندر تندرستی ہے, آپ دنیا سے بھی لڑ سکتے ہیں, آپ ہر چیز کو فتح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ محل میں بھی ہو تو آپ کو سکون و خوشی نہیں ہے. سو دس بینگ اے پرائیورٹی نمبر 1 آپ کی زندگی میں, the reason why you clicked this video was because کہ آپ کی پرائیورٹی اسٹریٹ ہے اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. 9 سے لے کے 1 تک کے ٹپس جو ہیں, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, دیز آر آل ریسرچ بیس. یہ ٹپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ ساری ریسرچ بیس ہے, اور اس کی فاؤنڈیشن ہے ویلنس کی ایکسپرٹ اسٹڈیز. سو یہ ڈفرینٹ اسٹڈیز کر کے اور اس میں سے جو نتیجے آئے اس کو بیس کر کے یہ 9 رولز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ 9 رولز پریکٹیکل ہیں, افورڈیبل ہیں, ایکچولی فری آف کاسٹ ہے آلموسٹ کیا لٹرلی فری. اور اس کا جو آپ کو ریوارڈ ملنا ہے, دیٹ از لٹرلی نیکسٹ لیول فار دا ریسٹ آف یور لائف. ناؤ رول نمبر 9, ٹپ نمبر 9 ہے 9,000 steps every single day. Now سننے میں آئے تو 9,000 steps, oh my God, مطلب یہ تو اچھے خاصے. ہم نے زیادہ 10,000 steps کے بارے میں بھی سنا ہے, بٹ ریسرچ کے مطابق 7 to 10,000 steps ایوری ڈے جو ہے وہ اچھا ہے, بہترین ہے. اور اس کے ایوریج اگر آپ نکالیں تو اراؤنڈ 8 to 9,000 steps آپ کے روز ہوں, جو مجھے لگتا تھا کہ بہت زیادہ ہے, لیکن ایکچولی اتنے زیادہ نہیں ہے. اٹس کوائٹ پریکٹیکل. اگر آپ کے پاس کوئی واچز ہیں جو آپ کے اسٹیپس ریکارڈ کر سکتے ہیں, یا آپ کے فون کے اندر آپ وہ ایپس ڈال سکتے ہیں جو آپ کے اسٹیپس ریکارڈ کر سکتے ہیں, 1-2 دن کر کے دیکھو اور پھر تمہیں خود پتہ چلے گا کہ نہیں یار, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اور یہ 9,000 steps پر ڈے بریک ڈاؤن اگر اس کو کر لیتے تو اٹ ول بی ویری ایزیئر. ناؤ واٹ ڈز دس واکنگ اسٹیپس جو ہے یہ سب کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کا جو ہارٹ ہیلتھ ہے, آپ کا جو کارڈیو ویسکولر جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو امپروو کرتا ہے, آپ کے امیون سسٹم کو مزید بوسٹ کرتا ہے, اور آپ کا جو یہ اسٹریس جو ہے وہ اس کو کافی حد تک ریڈیوس کرتا ہے, اور کافی کنٹرول کرنے میں اور مینیج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسٹریس ہر زندگی, ہر بندے کا مسئلہ ہے. جتنے لوگ میرے اس یوٹیوب پہ ہیں, جتنے انفیکٹ پورے یوٹیوب پر ہیں, کسی سے بھی پوچھو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اسٹریس نہیں ہے. تو اسٹریس کو مینیج کرنا یہ واقعی ایک کلا ہے. نا واکنگ آپ کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اف یو آر ایٹ ہوم, آپ لانڈری فولڈ کر رہے ہو, کپڑے طے کر رہے ہو, امی سے بات کر رہے ہو, کسی سے فون پہ بات کر رہے ہو, یا کھانا دم پہ لگا ہوا ہے, چائے دم پہ لگی ہوئی ہے, ٹیک اے فیو اسٹیپس اوور دیر. اسی کچن میں گول گول گھوم لو, یا اسی ایک جگہ پہ جو ہے وہ اپنے اسٹیپس اوپر نیچے کرتے رہو, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کمپلیٹ یور اسٹیپس تھرو آؤٹ دا ڈے. یہ آپ صبح ناشتہ کرو, ناشتے سے پہلے تھوڑے سے اسٹیپس کرو, ناشتے کے بعد تھوڑے سے اسٹیپس کرو, آپ کھانے کے بعد, لنچ کے بعد, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یو کین ڈو اٹ. آپ انٹریکٹ کر سکتے ہو, آپ لٹرلی ان کے ساتھ گیمز اس طرح کے کھیل سکتے ہو, آپ اسٹیپس کر سکتے ہو. گو آؤٹ فار اے واک, چھت پہ چلے جائیں, بالکنی میں چلے جائیں. اسٹیپس پاسبل ہیں اگر آپ اس کو کانشیسلی کرتے ہیں, یہ جان کے کرتے ہیں کہ میرا ایک گول ہے, میں نے اتنے اسٹیپس کرنے ہیں اور میں اس لیے کر رہا ہوں. اور اگر میں واک کر رہی ہوں, یا اگر میں چائے دم پہ جو ہے وہ میں یہاں سے وہاں گول گول چکر لگا رہی ہوں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ چیزیں ہم کانشیسلی سوچ کے کرتے ہیں نا, تو somehow ہماری جو جرنی جو ہے نا وہ اور زیادہ موٹیویٹنگ اور زیادہ پاسبل لگنے لگتی ہے, اور ہم کو نا اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی ایکچولی فیل ہونے لگتے ہیں. ناؤ ٹپ نمبر 8 از ڈرنکنگ 8 glasses of water every day. Now again بول رہے ہیں, ہم بچپن سے سن رہے ہیں یہ بات کہ 8 گلاس پانی پینا ہے, 8 گلاس پانی پینا ہے, اتنا پانی پینا ہے, دن میں پانی پینا ہے. 1 دن 2 دن 4 دن ہم پی لیتے ہیں, کانشیس رہتے ہیں. کبھی ہم نے اگر زیادہ
मिर्चों वाली और तेल वाली बिरयानी खा ली हो तो उस दिन बड़ी प्यास लगती हो, फिर हम पानी पीते रहते और हम सोचते रहते हैं कितना कमाल करने मैंने आज बड़ा पानी पिया, लेकिन अगले दिन से फिर वही जिस तरह की पानी की चोर मैं हूँ। मेरे लिए ये रूल जो है ना, ये याद रखना और इसको फॉलो करना एक टास्क है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं पानी को जो है वो 8 ग्लासेस जो हैं वो मैं अपनी फेवरेट वाटर बॉटल के अंदर भरती हूँ और मुझे पता है कि उसको मैं देख देख के खुश होती रहती हूँ और उसमें से मैं ऑन ऑफ जो है वो सिप करती रहती हूँ। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एक साथ तो पीना नहीं है। यू हैव 24 आवर्स में से एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स इसके अंदर आप आराम से जो है वो अपना वाटर मैनेज कर सकते हैं। व्हाट डज वाटर डू? वाटर जो है ना, सिंस वी टॉकिंग अबाउट वेट लॉस एंड वेट लॉस जर्नी और आपका वेट मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, पानी जो है वो बेसिकली हम ख़वातीन के लिए हार्मोन्स का जो लोचा एवरी मंथ होता है, हर चीज़ पर होता है। मतलब एक सब्ज़ी खाने से हार्मोन बदलता है, एक फ्राइड आइटम खाने से अलग हार्मोन बदलता है, कम पानी पीने से अलग हार्मोन बदलता है, नहीं सोने से अलग हार्मोन, हर बार हर वक्त इम्बैलेंस ही रहते हैं, बैलेंस ही नहीं होते, मतलब एक स्ट्रगल उनकी रोजाना हर वक्त चलती रहती है। सो व्हाट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डज इज कि वो आपकी जो ये हार्मोन जो सारे क्रेजी हुए में बिकॉज ऑफ एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे वो ढिठाई है, चाहे वो मजबूरी है, चाहे वो वट एवर रीज़न इट इज़, उसको जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हील करता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करता है, बेटर करता है। सो बेटर इज़ टू कंज्यूम वाटर and 8 glasses of water every single day. Rule number 7, tip number 7 is 7 hours of sleep every day. ना हमें लगता है कि जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, ठीक है, बॉडी तो रेस्ट कर रही है, लेकिन हमारा ब्रेन और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ये भी रीसेट हो रहा है, ये रिचार्ज हो रहा है। हम अपना मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते हैं, लेकिन हम अपने आप को चार्ज नहीं कर पाते। वी नीड those 7 hours of sleep to recharge every single thing in our body, in our system. और जब हमारी नींद पूरी होगी, हमारे हार्मोन्स ही बैलेंस होंगे, हमारा डिप्रेशन कम होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, हमारी मेमोरी लॉस नहीं होगा, हम चीज़ें याद रखेंगे, हमारा फोकस स्ट्रांग होगा, एंड डिसीजन मेकिंग जैसा एक इम्पोर्टेंट काम जो है वो स्लीप डिप्राइव्ड लोगों के लिए एक शदीद मुश्किल काम है। सो अगेन, इफ यू वांट टू हैव ऑल दीज हेल्दी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। 7 hours ऑफ स्लीप, ये पॉसिबल कैसे है? रात को सोने से पहले आप कोई हैवी मील ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है। जहां हमने ज़्यादा डिनर कर लिया, आपको सोने में और आपका जो एक नॉन स्टॉप एक स्लीप साइकिल जो है वो आपका डिस्टर्ब होगा। सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी के नहीं सोना, वरना अगेन वो आपको स्लीप जो है वो ब्रेक करेगा। हाइड्रेटेड रहना मना नहीं है, बट अगेन किसी भी चीज़ को अगर आपने किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादती करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही मिलेगा। सो वो क्या ऐसी ट्रिक है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम जो है ना टाइम पे सो जाते हो? क्या है वो टिप क्या है, मुझे बताओ क्या है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ तो है। मेरी तो 2-4 टिप्स हैं जो मैं करती हूँ सोने से पहले, लेकिन व्हाट डू यू डू टू स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम? सो एंड सेकंड क्वेश्चन, आर यू गेटिंग इनफ स्लीप या आर यू ओवर स्लीपिंग? अगेन मॉडरेशन इज की, सो बताइएगा जरूर कमेंट बिलो। नाउ टिप नंबर 6, रूल नंबर 6 इज 6 minutes of meditation in a day. क्यों? For stress management, for clearing your mind, for getting back in the present, मतलब and just being there in that moment. Now researchers कहते हैं कि अगर आप रोजाना 6 मिनट की मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशंस करते हैं, खामोशी से अपना एक सुकून का एक जगह अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करके जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इफ यू जस्ट डू दिस 6 minutes एवरी डे, जस्ट 6 minutes, ये आपके डिप्रेशन को कम करता है, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने को और स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करता है, ये आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपका मेंटल हेल्थ को और बेहतर करता है और आप मोर प्रोडक्टिव और मोर एफिशिएंट हो जाते हैं। सो ये जो 6 minutes ऑफ मेडिटेशन, ये आप
आइडियली तो सुबह के वक्त करें, लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, जिस टाइम भी मिल रहा है, मकसद ये है टू टेक अ ब्रेक, और आप वो 6 मिनट जो है उसमें आराम से अपने कोई भी एक कोना पकड़े. अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप लंच ब्रेक में हैं, अगर आपने आपका कोई मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग से पहले, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से पहले, नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले, टेक अ लिटिल ब्रेक, और आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 6 मिनट के लिए, जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड डू नथिंग एल्स एंड जस्ट फोकस ऑन दैट. पोस्चर सही रखेंगे, जहाँ भी आप खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए, शोल्डर्स बैक होंगे, आपकी बैक स्ट्रेट होगी. कॉन्शियस अपने बैक के ऊपर रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट है. एंड देन आजकल के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस तो बेइंतहा हैं. अब मेडिटेशन जो है वो इन डिस्ट्रैक्शंस को सेग्रीगेट करने में हेल्प करती है. जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, जब आप टेंशन में हैं, जब आपकी कोई डेडलाइन है जो मीट नहीं हो पा रही है, देयर इज जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दैट टाइम इफ़ यू टेक अ ब्रेक एंड इफ़ यू टेक अ 6 मिनट्स की मेडिटेशन, और जस्ट आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, तो यूल अंडरस्टैंड कि आफ्टर दिस मेडिटेशन इज ओवर आपको शायद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए. द नेक्स्ट वन, टिप नंबर 5, रूल नंबर 5 इज कंज्यूमिंग 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज. नाउ सर्विंग क्या है? एक सर्विंग, एक मुट्ठी जितना, एक छोटा सा प्याला जो है, आप फ्रूट्स और वेजीज को अपनी जिंदगी में आप डाल देना. व्हाई डू यू डू दैट? जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अराउंड 5 सर्विंग्स एवरी सिंगल डे अपने डेली अपने डाइट में अगर आप डाल देते हैं, तो इन फलों, इन सब्जियों के अंदर जितना न्यूट्रिशन है, जितना फाइबर है, जितने इसके अंदर फ़वाइद हैं, और जितने इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी को हील करता है, आपकी गट को हैप्पी रखता है, आपकी स्किन ग्लो कराता है, और आपका जो ये वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस जो आपकी जो ये जर्नी है, इसमें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है. सो ये जो 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज हैं जो आपको एक दिन में लेनी है, आप इसको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं. अगर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस जा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कट दोज वेजिटेबल अपना फ्रूट्स वगैरह, या आप ठोस अपने एप्पल लेके जाओ, अपना ठोस आप अपना बनाना, कोई भी जो भी चीज़ आप लेके जा रहे हो आप वहाँ पे कंज्यूम करें. सब्जियों को जो है, वेजिटेबल्स को आप घर में आप सब्जियाँ बनाएं नॉर्मल हल्की भाप में, बहुत ही कम तेल में, बहुत अच्छी सब्जियां बन जाती हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं ऑफ रेसिपीज ऑफ सब्जियां, सलाद. सो यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स इन योर डेली रूटीन, एंड दैट इज़ हाउ आपकी 5 सर्विंग्स ऑफ सब्जी एंड फ्रूट जो है वो पूरे होंगे. कहने को लगता है 5 सर्विंग, लेकिन एक्चुअली नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल अच्छे बैलेंस डाइट वाले घर में और उस तरह की रूटीन में अगर आप रहते हैं, तो आपकी ये 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज जो है ये ऑलरेडी कवर हो जाती है. बच्चों के लिए फ्रूट्स किस तरीके से, मैं अपने हमजा को नॉर्मली क्या करती हूँ कि हमजा सुबह माशाल्लाह स्कूल जाने से पहले उसको मैं नाश्ता कराती हूँ, और फिर उसके जो लंच में वो सबसे ज़्यादा उसके जो है ना वो फ्रूट्स और फ्रूट्स होते हैं, तो मैं उसके फ्रूट्स कट करके उसको मज़ेदार के टूथपिक्स वगैरह के साथ, मैं टूथपिक्स नहीं फूड पिक्स के साथ में दे देती हूँ. वो आराम से उसको इन्जॉय कर लेता है. उसी में मैंने खीरा डाल दिया, कभी मैंने उसमें ग्रेप्स डाल दिए, कभी सेब है, कभी बनाना है, सो उसका वो फ्रूट का कोटा पूरा हो जाता है. उसके अलावा आप शेक्स दे सकते हैं बच्चों को, फ्रूट के शेक्स. सब्जियों को आप किस तरीके से देंगे? एक तो नॉर्मल सब्जी आप चावल में, मैं दही के साथ आप मसल के आपने बच्चों को खिला दिया, कुछ कर दिया, वरना तो फिर आप यू कैन मेक लिटरली सब्जी के बर्गर्स एज वेल. और इफ़ यू वांट टू डू दैट, मामा भी बहुत मज़े की बनाती, लोबिया के हम लोग कबाब बनाते थे. इफ़ आप लोग के कोई अगर ऐसी रेसिपीज़ अच्छी, बोलते हुए पानी आ रहा है ना मुँह में, तुम लोग को पता नहीं है, मतलब ना बड़ी खुशनसीब हो कि चंद अच्छी मैंने सब्जियां खा ली हैं, अच्छी पकी हुई, जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से सब्जियां मेरी ज़िंदगी में हैं. सो दीज बर्गर्स यू कैन मेक देम फॉर योर किड्स एज वेल, और ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों को विल नॉट इवन नो द डिफरेंस इंशाल्लाह. अच्छा, अब सवाल कि अगर आपका कोई एक आपका जो है आपका फेवरेट गो टू जो होता है ना वेजी या फ्रूट जो है वो क्या है, और अगर आपको कोई एक फ्रूट फॉर योर लाइफ खाने को मिले कि बस यही तुम खा सकते हो और पूरी ज़िंदगी तुम सिर्फ यही खा सकते हो, तो वो फ्रूट क्या होगा?
अम्मी का तो आम है, मुझे पता है। अम्मी मुझे आवाज़ आ गई है, मम्मी आपको कमेंट में लिखने की भी ज़रूरत है, मुझे पता है आपका आम है। पूरी ज़िंदगी मम्मा कहेंगे एक फ्रूट जिसके बगैर मैं नहीं रहूँगी और ये मैं खाऊंगी, दैट इज़ आम। चाहे कुछ भी हो। आप लोगों का क्या है, कमेंट बिलो। और तुम तो जो कह रहे हो ना कि हम बिजी हैं और टाइम नहीं है या कुछ है, ईजी है। ब्रेकफास्ट में एक एप्पल पकड़ो, दोपहर में जो है आप एक सैलड पकड़ो, और रात को जो है कोई भी सब्जी घर की जो बनी हुई ना उसको खा लो। आपकी 5 सर्विंग्स और खाना जो ना ये हो जाएगा। चलिए नहीं, बहानेबाजी है ना, अब नहीं कर यार, अब नहीं कर। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना इस पे, अपने ऊपर अपनी जात पे करते हैं ना, बेटर के लिए, बेटरमेंट के लिए। रूल नंबर 4 इज वन ऑफ माई फेवरेट रूल्स विच इज द 4 minute ब्रेक। नाउ भाई का जो अटेंशन फोकस है ना वो आउट है, पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है कि आई कैन नॉट इवन ब्लेम इट कि नहीं तो हमजा की पैदाइश के बाद हुआ। मैं पहले बड़ी फोकस होती थी, काम करना है, डेट्स याद, पता है दिन क्या, फलां क्या। जो मैंने ब्रेक ले ली ना उसके बाद से मेरा सारा निज़ाम जो है ना वो आउट हो गया। फोकस का मेरा इशू है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इशू भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई काम करके कर रही हूँ, अगर मैं इसकी कंटेंट के ऊपर भी, मैं जब यूट्यूब के ऊपर काम कर रही होती हूँ तो मैं अगर सारे के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, खुद कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ना मैं थोड़ी देर बाद उठ के ना मैं कुछ और करने लगती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। 4 मिनट नहीं होता वो तो, तब आधा घंटा और 1 घंटा चला जाता है, या मैं वापस ही नहीं आती वापस काम पे। लेकिन 4 मिनट्स की ब्रेक अगर आप करते हैं तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि जब भी मैं ब्रेक लेके फिर मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई एपिसोड लिखनी है, कभी कुछ करना है, कोई वीडियो करनी है, तो वो मेरा बड़ा इफेक्टिवली हो जाता है, एफिशिएंटली होता है और मज़ीद फोकस के साथ होता है। सो टेकिंग दीज मिनी 4 minute ब्रेक्स वाइल यू वर्किंग, आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो वो आपको एक्चुअली हेल्प करता है उल्टा आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को वापस लाने में। नाउ मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा जो टेंशन है वो ये है कि मेरे जो है ना वो काफ़ी सारे हैं पर्सनालिटीज़, जैसे आप सबकी भी होंगी, हर इंसान की है, हर कोई एक गत्ते का तो है नहीं कि एक ही बस मुँह लेके करेगा। तो बड़े मसले, बड़े अपने 300 किस्म की उरूसाएँ हैं जिनमें से मुझे चूज़ करना और पिक करना है कि मैं भी क्या कर रही हूँ। मैं एक उरूसा यहाँ से इस कमरे में यहाँ से निकलती है तो वो एक दूसरी उरूसा होती है वहाँ से निकलती है, वो किसी ने बुला लिया, किसी ने कुछ किया ना, इन सब में इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग। एट दैट टाइम जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू कि जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू। एक कोना पकड़ लो, जस्ट बी समवेयर, गो टू द बालकनी, जस्ट अपना ब्रीदिंग करो, 4 मिनट की ब्रेक लो एंड देन कम बैक। लिटरली आपका फोकस अच्छा बेटर होता है। अगेन ये वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और इसको देख के बताएगा डू यू स्ट्रगल विद दीज इश्यूज एज वेल। टिप नंबर 3, रूल नंबर 3 इज हैविंग 3 प्रॉपर बैलेंस्ड मील्स इन अ डे। ना मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वालों को नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ। 3 बैलेंस मील्स का मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसके अंदर कार्ब्स भी होने चाहिए, उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। ना ये सारी चीज़ें जो है वो कोई महंगी नहीं है, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ्स पे जाके उसको अचीव नहीं करना है। घर का खाना खाओ, टिफ़िन में भी घर का खाना डाल के लेके जाओ, लंच बॉक्स में भी घर का खाना डाल के लेके जाओ। चाहे तुम पढ़ने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, आप घर खेलने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो। अच्छा, जो ये लोग मेरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मेरी बरादरी से जो डाइट करते ही रहते हैं, जो पूरी ज़िंदगी डाइट भी करते हैं लेकिन कम नहीं होते हैं कुछ, तो मेरे जो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो गंदे बच्चे हैं, उनका क्या होता है कि हम पूरा दिन भूखा रहते हैं, हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते, हम कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं खाना, भूखा रहना है बेटर है और ये और वो, और उसके बाद फिर हम रात को मंगवा लेते हैं पिज़्ज़ा या ब्रोस्ट या बर्गर या बिरयानी बिल्कुल ऑड आवर्स में, और उसको फिर हम मंड के खाते हैं। तो अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि ये करके यू आर गोइंग टू लूज वेट एंड बी हेल्दी और गट भी ठीक रहेगा और दिमाग भी ठीक रहेगा, तो ये नहीं होने वाला। टिप नंबर 2, रूल नंबर 2 इज के टेकिंग एट लीस्ट 2 hours ऑफ गैप बिफोर यू गो टू बेड। मतलब जब आप सोने जा रहे हैं उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले 2 चीजें आपको आइडियली ख़त्म कर देनी चाहिए, जिसमें से एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक जो है दैट इज़ कि आपने जो भी खाना आपको खाना है, जो भी आपका लास्ट मील है ऑफ द डे, जो आपका डिनर है, वो आपके स्लीप टाइम से पहले, अगर 10 बजे बिस्तर पे जा रहे हो 8 बजे आखिरी मील करोगे, 11 बजे जा रहे हो 9 बजे करोगे, अगर 9 बजे बिस्तर पे जा रहे हो आपने 2 घंटे पहले। सो मकसद ये है कि एटलीस्ट 2 घंटे आपको देने। अगर आप खाना खाने के बाद वो 2 घंटे का गैप नहीं देते और आप इमीडिएटली बिस्तर पे चले जाते हैं, आप लेट जाते हैं, आप सीधे हो जाते हैं और आप सो जाते हैं, तो वो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। डाइजेशन को डिस्टर्ब करने का मतलब गट हेल्थ हो गया सैड और गट हेल्थ हो गया एंग्री। जब वो एंग्री और सैड होता है और फिर वो कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि साला रात के वक्त मेरे को सोना था
और तुम लोग काम करवा रहे हो गलती से, तो उस वक्त जो है ना फिर वो ब्रेन को भी जो है ना वो पंगे देता है, पिन करता है, और फिर ब्रेन और गट दोनों मिलके जो है वो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी, फोकस, एवरीथिंग आपका। दूसरा, अगर आप प्लीज़ ये काम कर सके जिसमें आपकी मेंटल, आपकी दिमागी सेहत, आपका दिल सब सुकून में रहेगा, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कर सकें कि यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर स्क्रीन्स। 2 घंटे पहले सोने से अगर आप अपनी स्क्रीन से छुटकारा कर लेते हैं, आपको सोने में आसानी होगी। बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग, खाने के फ़ौरन बाद अगर सोते हो, आपकी बॉडी को वो अलर्ट कर देते हैं। जब आप स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, आपको उसके बाद रिलैक्सेशन ही आपकी बॉडी को आपको अलर्ट कर देता है, तो आप सो नहीं सकते। सो इफ़ यू गेट रिड ऑफ योर स्क्रीन किसी तरीके से, आइडियली तो जितने इसके अंदर से वेव्स, रेज, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, ऑल दोस हॉरिफिक थिंग्स, कहते हैं कि अपने दूसरे रूम में, जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं, आप उसको किसी और रूम में अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाएं। लेकिन सांस कैसे आएगी? मैं तो मर जाऊंगी। आप में से तो सारे लोग, किसी को सांस ही नहीं आएगी। वो मैसेज, वो नोटिफिकेशन, वो जब तक 300 दफ़ा ना देखो। पर यार प्रैक्टिस करो। अगर दूसरे कमरे में नहीं रख सकते चार्ज पे, एटलीस्ट जहाँ तुम whenever you're lying down, उससे दूर होकर आपको उठ के जाके फ़ोन चेक करना पड़े। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इट इज़ वेरी पेनफुल, लेकिन तकलीफ होगी तो फिर betterment आएगी। So no pain. Now tip number 1, last but not least, rule number 1 is कि मर जाओ मिट जाओ बेटा, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी से जान नहीं छुड़ा सकते। फिजिकल एक्टिविटी घर में, ज़िंदगी में, लाइफ में होना बहुत 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 ज़रूरी है। आप कोई भी कमाल कहीं से भी उठ के कोई सी भी डाइट कर ले, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा, और वो प्रोसेस और वो स्पीड उसकी और एफिशिएंसी जो है वो उस तरह से नहीं होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें हम सोचते हैं जिम और कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होगा या कोई बहुत मुश्किल चीज़ होंगी। इट कैन बी एनी थिंग एज सिंपल एज वॉकिंग आफ्टर हैविंग अ मील, या फिर इन द अर्ली मॉर्निंग, या बिफोर गोइंग टू बेड एज वेल। थोड़ी सी आप वॉक कर ले, थोड़ी सी आप सिटअप्स कर ले, थोड़े से आप चेयर के साथ आप चेयर योगा कर ले। आप अगर बच्चों के साथ हैं, उनके साथ आप जो है वो एक डांस सेक्शन रख सकते हैं, एक फ्रीज डांस जो बच्चों का, जो वन ऑफ दोज फेवरेट गेम्स दैट वी लव प्लेइंग एज वेल, वो कर सकते हैं। हम उसके साथ हम पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं। सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू विद द किड्स, मतलब आई डू इट एज वेल। सो कोई भी किस्म का, मैं पहले जब मैं जिस घर में थी वहाँ पे वो बंगला था, तो उसमें मैं लिटरली, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरती थी, फिर मैं सीढ़ी के घर आती थी, घर से भी सीढ़ी चढ़ के मैं छत पे जाती थी हमजा के साथ, वहाँ से मैं देखती थी कि नीचे कौन है, फिर मैं सीढ़ी हमजा के साथ चढ़ के उतर के मैं नीचे आती थी। तो आई वुड डू दिस many times in a day. So again, कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में डालना है। खाने के बाद अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हल्की सी वॉक करते हैं, वो आपकी ग्लूकोज स्पाइक को भी रिड्यूस करता है। ये आपके मूड को बूस्ट करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंड यू फील हैप्पी एंड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड फन जो आप एक फिजिकल एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। इट कैन बी योगा, इट कैन बी स्ट्रेचिंग, इट कैन बी डांस, इट कैन बी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं तो यार, जो पहले होता था, पता नहीं आप लोग में से कौन कोई ऐसी एक वे ऑफ लिविंग था, मतलब नॉर्मल था कि सब खाना खाते थे घर वाले, और खाना खाने के बाद सब जो है थोड़ी देर के लिए चहलकदमी के लिए निकल जाते थे। तो वाई नॉट जस्ट स्टार्ट दैट अगेन, और अपनी फैमिली के साथ रोज खाने के बाद एज ए फिजिकल एक्टिविटी, लेट्स ऑल गो आउट फॉर अ वॉक। सो इंक्लूड दी स्मॉल थिंग्स। आपका फेवरेट वे ऑफ मूवमेंट, फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी क्या है जो आप कभी भी करो तो आप उससे घबराते नहीं और आपको मजा आता है वो करने का, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग रेगुलरली मेरे इस YouTube चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स, जो फिजिकल एक्टिविटी रोजाना रेगुलरली करते हैं, आपका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी क्या है और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं वो वन फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट एवरी सिंगल डे करने के लिए। डू हेल्प अस आउट, डू चेक द कॉमेंट्स। मेरे कॉमेंट्स में जो आप लोग मैसेज करते हैं, आई रीड ऑल ऑफ देम, आई ट्राई टू रिप्लाई टू देम। I know, I see you, I hear you, I'm here. इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें आपने बोली हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती हो, अगर मैंने कुछ गलत कहा है वीडियोस के अंदर, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, गलती कर सकती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें मैं खुद अपने साथ जो जानती हूँ वो शेयर कर रही हूँ, जो कुछ मज़ीद जानती हूँ वो आपके साथ आपको बताती हूँ। कुछ गलत हो तो जैसे आप हमेशा मुझे करेक्ट कर देते,
تو اس طرح کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنی زندگی کو میں یہ 9 رول ضرور ایڈ کیجیے, ٹرائی کیجیے. 1 سے 1 مہینہ جو ہے وی کین ڈو اٹ ایز اے چینل کہ ہم یہ سارے جو ٹاسک جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں 9 سے 1 تک کی, ان سارے رولس کو ہم فالو کرتے اور لیٹس سی کہ ہماری زندگی میں کوئی بہتر فیصلہ زندگی کا ہم کر پاتے کہ نہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. آئی پرومس یو کہ بہتر ہوگی. سو till the next video, do like, share and subscribe and let me know what you want to watch. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کا دن, آج سے آنے والے سارے دن ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو. خیال رکھیں. بائے بائے.